Good morning, third years. I am Mrs. Jyotsnanand, one of your medical surgical nursing teacher. So I am teaching you about the one of your system disorder, that is the disorders of the eye. So in this we are going to study about the conjunctivitis, blepharitis and the hordeolum, that is also called the staph and the chalazion. So first topic I am dealing here is the conjunctivitis. So what is the meaning of conjunctivitis? You all know that is inflammation of the conjunctiva. So itis mean inflammation and conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva. So the another name of conjunctivitis is also in the layman language, it is also known as the red eye syndrome. So let's learn about the conjunctivitis. So introductory part. So what is conjunctivitis? As the name suggested, that is conjunctivitis, also known as the pink eye, or red eye also, is an inflammation of the conjunctiva. The conjunctiva is the thin clear tissue that lies over the white part of the eye and lines the inside of the eyelid. Pink eye caused by some bacteria and viruses can spread easily from the person to person but is not a serious health risk. So what is conjunctivitis? It is the inflammation, simply it is known as the inflammation of the conjunctiva. You all know about the conjunctiva. आप जानते हैं conjunctiva क्या है? एक thin clear tissue है जो सबसे anterior part of the eye को क्या करता है, cover करता है, और anterior part of the eye and the eyelids के inner side को भी क्या करता है, ये line करता है. So the various causes are there, but main are the organism. So bacterial causes are there, viral causes are there, sometimes chemical causes. Foreign particles are also the causes of conjunctivitis. So about the definition. So conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva, the outermost layer of the eye and the inner surface of the eyelid, है ना. सो आपके डायग्राम में भी दिख रहा है कि इन्फ्लामेशन हो गया है, जो आउटर कवरिंग है आई का, दैट इज़ द कंजक्टिवा में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है. इट इज़ कॉमनली ड्यू टू द इन्फेक्शन, यूजुअली वायरल बट समटाइम्स बैक्टीरियल और एन एलर्जिक रिएक्शन. So there are various causes. So allergic conjunctivitis is mainly caused by the allergens such as the pollen, perfumes, cosmetic, स्मोक, डस्ट, माइट्स एंड दी आई ड्रॉप्स. सो अगर पर्सन एलर्जिक है इन चीज़ों से, सो उसको कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, दैट इज़ कम्स अंडर दी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. ठीक है. सो अगर कॉजेस यहाँ पे बैक्टीरिया हैं, सो इट इज़ कम्स अंडर दी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. सो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, so these are the some bacteria which is responsible for causing inflammation in the conjunctiva. Now third one is the viral conjunctivitis. The main causes under the viral conjunctivitis are enterovirus, herpes simplex virus and the rubella. Now next is the fourth is the chemical conjunctivitis. So it is mainly due to the chemical agents. So getting smoked liquids, fumes or chemicals in the eye are the main reason behind the chemical conjunctivitis. And last one is the autoimmunity, we can say. So what is autoimmunity? In which our own immune system attacks in our body cells. So हमारे immune system के जो cells हैं वो हमारे body organs को ही foreign समझ के उस पर क्या करने लगते हैं, जब attack करने लगते हैं. So there is inflammation results in autoimmune conjunctivitis. So these are the main causes of conjunctivitis. Now next is the sign and symptom. So बहुत सिंपल से साइन एंड सिम्टम से हम में से हर एक को शायद कंजक्टिवाइटिस हुआ था. आँख आ गई करके बोलते हैं, सभी को पता है ये चीज़. सो रेड आई रहता है बिकॉज ऑफ दी हाइपरमिया, ब्लड सप्लाई जो होती है इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज द स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा. द टर्म स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा इज नोन एज कीमोसिस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इपीफोरा, दैट इज वाटरिंग ऑफ द आई. एंड हाउएवर द प्यूपिल शुड बी नॉर्मली रिएक्टिव एंड द विजुअल एक्विटी इज नॉर्मल. सो विजन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, प्यूपिल्स भी आपका नॉर्मल रिएक्टिव रहता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, बट आपका विजुअल इक्विटी भी नॉर्मली क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है. बस तीन मेजर सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, दैट इज़ द हाइपरमिया, कीमोसिस एंड द इपीफोरा.
Okay, now next is the pathophysiology of conjunctivitis. So here the pathophysiology says microbes enter the eye on contact with the infected object. So microorganism जो है एंटर करता है आई के अंदर में किसी भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है. सो इट विल लॉज इन दी आई एंड दी सुपरफिशियल लेयर है, और वहाँ पर जा कर के इन्फेक्शन कॉज करता है. व्हाट डू मीन बाय इन्फेक्शन? इन्फेक्शन मतलब द ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है. और सो जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, सो इट विल सीन एज अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द आई, देन डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द आई, डायलेट हो जाएंगे ब्लड वेसल्स बिकॉज इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ है. एंड अल्टीमेटली जो सिम्टम्स है कंजक्टिवाइटिस का वो आपको दिखाई देगा, दैट इज़ द स्वेलिंग, रेडनेस, एक्सुडेट एंड द discharge. Okay, so this is about the pathophysiology of conjunctivitis. Now about the diagnostic finding. So history and physical examination, देख करके ही समझ में आएगा आपको कि पर्सन को क्या है, कंजक्टिवाइटिस है. देन स्वैब फॉर बैक्टीरियल कल्चर इसलिए ताकि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जान के हम क्या कर सके, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट है या फिर आई ड्रॉप्स है वो हम स्टार्ट कर सकें. नाउ पैच टेस्ट फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है सो आपका एक पैच टेस्ट होता है. पैच टेस्ट के थ्रू आपका कौन से चीज़ से पर्सन एलर्जिक है वो चीज़ क्या होता है हमको पता चलता है, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग. Now about the treatment. The treatment of according to causes, यहाँ पर ट्रीटमेंट हैं, ठीक है. सो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो जाहिर सी बात है हम एंटी बैक्टीरियल देंगे. वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो जाहिर सी बात है हम एंटी वायरल्स देंगे. सो मेनली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ सिम्टम है रेड आई, डिस्चार्ज, पस, पेन, फोटोफोबिया, दैट इज़ मेनली आपका सेंसिटिविटी टू लाइट है ना. मैनेजमेंट मेनली हम लोग करते हैं क्लोरामफेनिकॉल 0.5% आई ड्रॉप्स देते हैं, जेंटामाइसिन 0.3% आई ड्रॉप्स, टेट्रासाइक्लिन 1% आई ऑइंटमेंट, ठीक है. नेक्स्ट इंटेंसिव इंस्टिलेशन फॉर फर्स्ट डे और अंटिल सिम्टम एंड साइन रिड्यूसेस. सो यहाँ पे 2-3 एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स एंड एंटीबायोटिक का नाम दिया गया है. हम उसमें से कोई एक चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट. सो डॉक्टर जो ऑइंटमेंट या आई ड्रॉप एडवाइस किया है उसको हमको क्या करना है, आई में इंस्टिल करना है. नाउ प्रिवेंशन है इसका, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन, मेनली हैंड हाइजीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ करेक्ट cleansing and the disinfection of the instrument between the examinations and the contact lens hygiene. So these are the preventive measures of the bacterial conjunctivitis. Now next is the management or treatment about the viral conjunctivitis. So symptom जो है red eye, watery discharge, itchiness and the irritation होगा. सब conjunctival hemorrhage भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. सब conjunctival hemorrhage का मतलब conjunctival लेयर के जस्ट नीचे hemorrhage डेवलप हो सकता है, जिसके कारण से और ज़्यादा हाइपरमिया जो है, रेडनेस जो है आई में हमको क्या होगा, दिखाई देगा. सो मेन जो है कोल्ड कंप्रेस टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट, और जो प्रिवेंशन है दैट इज़ पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, करेक्टिंग एंड क्लिनजिंग द डिसइंफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द एग्जामिनेशन. ये जो इन बिटवीन द एग्जामिनेशन की बात हो रही है, ये हो रही है बेटा आपके क्लिनिकल सेटिंग में, OPD वाले एरिया में. जब हम एक पर्सन का आई एग्जामिन करते हैं, मे बी वो इन्फेक्टेड होगा तो दूसरे पर्सन को एग्जामिन करते समय सारे इंस्ट्रूमेंट को हमको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट दी prevention of viral conjunctivitis. Now about the allergic conjunctivitis. So allergic conjunctivitis के लिए जो sign and symptoms, there is red eye, lacrimation, बहुत ज़्यादा आंसू आता है, itchiness होता है, irritation होता है, और mucus का build-up वहाँ पर होता है. So because allergic है तो हम antihistamine eye drops, steroid eye drops हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, जिसमें main जो drug है that is the cromolyn sodium 4% eye drop, lodoxamide 0.1% eye drop. and जो main prevention है उस particular allergen से हमको क्या करना है, अपने आप को सेफ रखना है, दैट इज़ अवॉइड एलर्जेंस. Now next is the nursing diagnosis of conjunctivitis. So there is acute pain related to inflammation of the conjunctiva, anxiety related to lack of knowledge about the disease process, self-concept disturbances related to a change in the eyelid, that is swelling and the edema, and last one is the risk for injury related to the limit of vision. So these all are the nursing common nursing diagnosis related to conjunctivitis. पेन होगा पेशेंट को, एंग्जाइटी रहती है, सेल्फ कंसेप्ट डिस्टर्बेंस होता है बिकॉज आँख में सूजन हो गया है, ठीक है, और आपका आई में इंजुरी होने के रिस्क क्या हो सकते हैं, इंजुरी रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू लिमिट्स ऑफ द विजन, ठीक है. सो मेन जो प्रिवेंशन है
दैट इज़ द बेस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन इज़ हाइजीन, नॉट रबिंग द आई बाय इन्फेक्टेड हैंड। ठीक है, सो हमको मेन हैंड हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको कंजक्टिवाइटिस डेवलप हुआ है और वो घर पे है, हमारे आसपास है, सो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हैंड हाइजीन, बिकॉज कॉन्टैक्ट थ्रू दी आपके आई को जब आप इन्फेक्टेड हैंड से छुएंगे, सो जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो आई में क्या करता है, एंटर करता है। सो दीज आर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है, दैट इज़ दी हैंड हाइजीन। उसके आर्टिकल्स को भी छूने से, उसको कॉन्टैक्ट होने से आपको क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द वैक्सीनेशन अगेंस्ट एडिनोवायरस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकस इज द ऑल्सो इफेक्टिव। सो इन पेशेंट्स जो इन सारे चीज़ों से वैक्सीनेटेड है, एडिनोवायरस से, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, न्यूमोकोकस से जो वैक्सीनेटेड है, उनको आपके कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस थोड़े से कैसे रहते हैं, कम होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। सो यूजुअली पिंक आई इज अ सेल्फ लिमिटेड डिसीज, आइदर क्लियरिंग अप ऑन इट्स ओन और आफ्टर अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। हाउएवर सर्टन फॉर्म्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस कैन बिकम सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज दे कैन कॉज कॉर्नियल स्कैरिंग। ठीक है, सो आपका जब रिपीटेड कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तब उसमें चांसेस है कि पर्सन को कॉर्निया में स्कार डेवलप हो सकता है। अदरवाइज़ ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, अपने आप से ही प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से, प्रॉपर मेजर्स, आपका एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जेंस आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में है, ठीक है, वो बार बार रिकरेंट हो रहा है, तो कॉर्निया में स्कारिंग होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मेन जो स्कारिंग होने के चांसेस जो है किन कंजक्टिवाइटिस में यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ एडिनोवायरस। सो वायरल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस दैट इज पिंक आई इज़ हाईली कंटाजियस। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है वो ज़्यादा कंटाजियस है। सो मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन सच एज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग शुड मिनिमाइज ट्रांसमिशन, अवॉइड टचिंग योर फेस सिंस द वायरस कैन एंटर्स द आई, नोज एंड दी माउथ। सो हमको हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है और अपने हाथ से हमको आँख को, नाक को और मुँह को ज़्यादा क्या नहीं करना है, छूना नहीं है। अगर हमको लग रहा है जो ऐसे पेशेंट से हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो ठीक है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। नाउ लास्ट वन इज द प्रोग्नोसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। सो मोस्ट केसेस ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस गेट बेटर विदाउट कॉजिंग परमानेंट आई डैमेज। सो इतना ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ नहीं है। आपका कंजक्टिवाइटिस जो है आपका सिंपल मेजर्स यूज़ करके वो ट्रीट हो जाता है और परमानेंट आई डैमेज जो है, आई विजन को क्या नहीं करता है, वो अफेक्ट नहीं करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजक्टिवाइटिस। होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ, आपको समझ में आया होगा। सो बाय बाय।